my dear students, let's start video lecture 5. First of all, we will revise the topics that we have studied in video lecture 4. The topic of the video lecture 4 was classification of matter. So let's revise it. Classification of matter. So students, I have already explained you, जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है. तो हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देखेंगे दैट इज फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज like physical state. Similarly, chemical classification is based on chemical properties. Okay, chemical properties, and chemical properties like chemical composition. Okay, so we will revise individually. First of all, we will talk about physical classification and then we will proceed towards chemical classification. Okay, let's see. Students, when we talk about the physical classification of matter, then the physical classification of matter, we have studied 3 different forms of matter, and these 3 different forms of matter were solid, liquid and gas. Okay, we have compared the properties of these 3 different forms of matter. Okay, so let's revise property one by one. First property was intermolecular force of attraction, which was the strongest in solids, weakest in gases, and liquids have stronger than gases but weaker than solids. Okay, second was intermolecular space. Intermolecular space was minimum in solids, maximum in gases, and intermediate in liquids. Third was definite shape and definite volume. Solids have both definite shape and definite volume. Liquids have no definite shape but they have definite volume and they acquire the shape of the container. And gases neither have definite shape nor have definite volume. After that, we have studied about the rate of diffusion. We know very well solids have very negligible diffusion, liquids have more diffusion than solids but less diffusion than gases, and they have maximum tendency of diffusion. After that, we have studied about rigidity, and rigidity is directly proportional to intermolecular force. So solids have maximum rigidity, gases have minimum rigidity, and liquids have more rigidity than gases but less rigidity than solids. And the last property that we have studied was compressibility. That maximum compressibility was present in gases due to strong intermolecular force. So due to very large intermolecular space, solids have very less compressible, they are called as incompressible, and liquids have more compressibility than solids and less compressibility than gases. Okay, so these were the physical classification of matter, according to which there are 3 different forms: solid, liquid and gas, and we have revised the total 6 properties. Okay, now let's see chemical classification of matter, which we have studied in video lecture 4. So students, let's now revise chemical classification of matter. Since chemical classification of matter is based on chemical properties like chemical composition, according to which the matter exists in 2 different forms. Matter exists in 2 different forms. First form is pure substances. And the second form is mixtures. Okay, pure substances, they have either only one type of atom or more than one type of atom present in a definite proportion. But in mixtures, they have 2 or more than 2 type of atom, but they are present in any proportion but not in fixed proportion or definite proportion. In pure substances, we have studied about
element and compound. Element, they have only one type of atom, they have definite position in the periodic table. Compound, they have two or more than two types of atoms but present in a definite proportion. In a compound, the individual atom has lost their existence. Compound had its own properties. Okay, this we have studied in element and compound properties. Now when we talk about mixtures, mixtures have two or more than two types of atoms present in any proportion. In a mixture, the individual member or the individual atoms are called as components. In a mixture, these individual atoms do not lose their existence and they are called as components. They are of two types. First is homogeneous mixture. Okay, in a homogeneous mixture, the particles easily mix through it. Particles is, or we can say the components easily mix through it, so there is a homogeneous nature and there are the same properties all throughout the mixture. While the second one is heterogeneous mixture. In a heterogeneous mixture, the properties are not completely mixed through it, or we can say they have different properties all throughout the mixture. Homogeneous mixture has various conditions, they have same properties all throughout the mixture, जबकि heterogeneous mixture के अंदर properties different होती हैं. Miscible liquids का जो mixture होता है वो homogeneous होता है, जबकि immiscible liquids का जो mixture होता है वो heterogeneous होता है. Soluble solute और solvent लें तो homogeneous mixture बनेगा, जबकि insoluble solute और solvent लें तो heterogeneous mixture बनेगा. Okay, this is the difference about pure substances, elements and compounds, and homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, so students, let's start the today's topic of video lecture 5, which is a very common topic, that is types of chemical reaction. Types of chemical reaction. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि देर आर सेवरल क्राइटेरिया, कई सारे अलग अलग बेसिस हैं, कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं. हम पहले उनकी बात करते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, फिर हम उसकी बात करेंगे जो आप इस साल 11th में एंड देन नेक्स्ट ईयर 12th में बात करेंगे. एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तब बात करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम अलग अलग क्लासिफिकेशन को, अलग अलग क्राइटेरिया को देखते हैं. सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उस हीट ट्रांसफर के बेसिस पे रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर आर, तो वी कैन से ऑन दिस बेसिस देयर आर two types of reaction. Okay, and first one is, that is A is exothermic reaction and B is endothermic reaction. Okay, and both these reactions you have studied in previous classes, that is class 10th. So let's revise it. So students, the first reaction that we are going to take as an example is exothermic reaction. अब इसमें बेसिक बात तो सबको मालूम है कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है. ओके, बट हमें इसके रिप्रेजेंटेशन को और इसकी और जो बेसिक बातें हैं उनको भी समझना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से इन दिस रिएक्शन, in this I think this is not visible, so let me write it here. In this reaction energy is released in the form of heat. ओके, यहाँ पे हमेशा एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी. तो मैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन बताऊं
कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, देखिए ध्यान से। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो A plus B gives a product, A and B are the reactant, plus heat. Okay, we can write like this, or we can say A plus B minus heat gives product. We can also say like this. Both are correct. Both are the representation of what? Exothermic reactions. One important thing, यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि reactants जो हैं, these are the reactants and this is the product. When reactants are converting into products, then heat is released. That means product have less heat, reactants have more heat. Okay. Similarly, you can see here, अगर आप reactants की heat में से कुछ part minus कर दोगे तब जाके products की heat आएगी. So exothermic reactions के लिए हमें एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि reactants की heat, let's say HR, is always more than products की heat. Products P actually. So reactants की heat is always and always more than product की heat. अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है, H stand for heat, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से आगे. देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और उसके रिप्रेजेंटेशन की, तो हमने उसके लिए क्या कहा? हीट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट. तो जो हीट चेंज होगा, हीट चेंज, ओके, तो उसको हम डेल्टा H लिखते हैं. दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट. अब हमने क्या कहा, यहाँ रिएक्टेंट की हीट क्या है? ज्यादा है, तो इट मीन्स दिस पार्ट इज मोर, प्रोडक्ट की हीट कम है. सो हीट चेंज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आ जाएगा? डेल्टा H विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ये हमेशा कैसा होगा? डेल्टा H इज नेगेटिव. ओके, बात समझ में आई? तो हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लस हीट हो सकता है ऑन प्रोडक्ट साइड, प्लस हीट प्रोडक्ट साइड, और यू कैन से माइनस हीट ऑन रिएक्टेंट साइड. ओके, और वी कैन से डेल्टा H इज नेगेटिव. जब भी हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव होगा. उसमें माइनस हीट होगा रिएक्टेंट साइड पे या प्लस हीट होगा प्रोडक्ट साइड पे. ओके, अब इसके आगे बात करते हैं. देखिए, अब हम आगे बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स की, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. सबसे पहला अगर हम बात करें कंबशन रिएक्शन, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का कंबशन कराते हो तो वहां पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, वह हमेशा एनर्जी रिलीज होगी. सो इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. सो देयर आर सेवरल अदर रिएक्शंस आर देयर जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कंबशन उस कैटेगरी में आएगा. ओके, और रेस्पिरेशन भी उसी कैटेगरी में आएगा. ठीक है, और हम आगे बात करें सेकेंड टाइप का रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, सो हम बात करते हैं उसके बाद. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बेसिक बात आपको मालूम ही है. इन दिस रिएक्शन, in this I think this is not visible. So in this reaction, energy is absorbed, energy is absorbed in the form of heat, energy is absorbed in the form of heat. okay, यह एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी. इसके हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा? देखिए, A plus B plus heat gives product, A plus B plus heat gives product, or we can say A plus B gives product minus heat.
सो बोथ दीज रिएक्शंस हमें ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो रिएक्टेंट्स की हीट है HR, उसमें कुछ ऐड होगा तब जाके प्रोडक्ट की हीट आएगी, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की हीट में से कुछ माइनस करेंगे तब जाके रिएक्टेंट की हीट आएगी। मींस इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हम क्या बोल देंगे कि रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट की हीट से कम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको एंडो के लिए ध्यान रखनी है। अब इससे हम इसके डेल्टा एच को, एनर्जी ट्रांसफर को या एनर्जी चेंज या हीट चेंज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो देखिए अब इसके बाद आगे। अब देखिए, जैसा कि हमने भी कहा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए हमने कहा कि जो प्रोडक्ट की हीट है वो हमेशा रिएक्टेंट की हीट से ज़्यादा होगी। सो डेल्टा एच का हम साइन क्या लिखते हैं, टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये जो डेल्टा एच ये क्या बताता है हमको, हीट ट्रांसफर। क्या शो करता है ये, हीट ट्रांसफर, और वी कैन से हीट चेंज, कितना हीट चेंज हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टर्म हमेशा इससे बढ़ा ही आएगा। सो डेल्टा एच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ऐसा कहाँ होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कहाँ हम देखते हैं, तो जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं नेचर के अंदर, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जितने भी होती हैं, दे ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑलवेज एंड ऑलवेज कोई भी टाइप का डीकम्पोजिशन हो, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंडोथर्मिक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट की हीट से ज़्यादा है, और एक्सो के लिए रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट की हीट से ज़्यादा था। यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव आता है और वहाँ एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव आता है। ठीक है, इसके आगे जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स में आपसे डील किया जाएगा। वहाँ पे आपको और अच्छे से डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इनका ग्राफ भी बताएंगे, इनके आगे और जो चीज़ें हैं वो भी बताएंगे। अभी बेसिक फॉर्म में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो में हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए। तो फर्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दो टाइप की हीट होती है। ओके, अब इसके आगे हम बात करें, देखिए सेकेंड क्राइटेरिया जिसकी हम बात करते हैं, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ speed of the reaction, speed of the reaction. There are several reactions which are very fast in nature, there are several reactions which are very slow in nature, there are several reactions which have moderate speed. तो speed की basis पे कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसकी बेसिस पे हमारे पास जो रिएक्शंस हैं जो हम क्लासिफाई करते हैं वो 3 टाइप्स है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन दिस बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो, पहला है, दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन, एंड द फर्स्ट वन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। दुनिया में कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट हो जाती हैं। सेकेंड है वेरी स्लो रिएक्शंस, देयर आर मैनी रिएक्शंस इन नेचर विच आर वेरी स्लो रिएक्शंस बोलेंगे उसे। एंड थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शंस, जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, वो मॉडरेट रिएक्शंस। तो एक आप ब्रीफ आउटलाइन तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब थोड़ा हम थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं इनके बारे में कि वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है और उनका एग्जाम्पल क्या है। सिमिलरली वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में और उसी तरह से मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में देखिए आगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, फर्स्ट which is
वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। देखो क्या होता है, दुनिया में नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट होने में 10⁻³ से 10⁻⁴ सेकेंड्स ही लगते हैं, यानी कि उनको कंप्लीट होने में पूरा 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। 1 सेकेंड का भी 1/1000 पार्ट और 1/10,000 पार्ट लगता है। ओके, तो वो जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो पहली वाली कैटेगरी में आएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, दीज रिएक्शंस रिक्वायर वेरी लेस टाइम, वो भी कितना, 10⁻⁴ से 10⁻³ सेकेंड फॉर देयर कंप्लीशन। इनको कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है, 10⁻³ से 10⁻⁴ से 10⁻³। 1 सेकेंड का 1/10,000 पार्ट से लेके 1/1000 पार्ट तक, इतना सेकेंड का पार्ट ही लगता है फॉर देयर कंप्लीशन। ओके, इनको कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर बात की होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, ओके, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी का एग्जाम्पल आएगी। जैसे हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिला दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl सोडियम क्लोराइड मिला दिया आपने, तो यहां से क्या होगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और NaNO3 मीडियम में ही रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे Ag+ आयन होंगे, यहाँ पे NO3- आयन होंगे, यहाँ पे Na+ आयन होंगे और यहाँ पे Cl- आयन होंगे। तो इनके आयंस के बीच में रिएक्शंस हुई जिससे कि व्हाइट PPT बना, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट PPT जो फॉर्म हुआ वो है सिल्वर क्लोराइड का, और यहाँ से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शंस। नाउ इसके बाद हम बात करें जो सेकेंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो है वेरी स्लो रिएक्शंस, बहुत ही जो स्लो होती है। अब स्लो का मतलब क्या हुआ कि इनको कंप्लीट होने में सेकंड्स तो लगते हैं, सेकंड से भी कम पार्ट जहां लगता है वो तो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। इनको कंप्लीट होने में 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। तो वी कैन से these reactions require very long time interval from 2 years to 5 years, from 2 years to 5 years for their completion, for their completion, उनके कंप्लीट होने में फॉर देयर कंप्लीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी स्लो। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल से 5 साल तक भी लग सकते हैं। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सबने देखा होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन कोई सेकेंड्स में होने वाला प्रोसेस नहीं है, या सेकेंड्स में होने वाली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो 2 से 5 साल तक तो ये आराम से कम 2 साल तो लगेंगे। उतने टाइम के बाद फिर रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। तो इस प्रोसेस, इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की जैसी, उसको क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा होगा। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। अब पहले हम ये समझ लें यहाँ पे
कि अगर हम वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें, वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके, या वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें, तो ऐसी रिएक्शंस को वेरी फास्ट कहो या वेरी स्लो कहो, ऐसी रिएक्शंस को पढ़ पाना, उनके मैकेनिज्म को समझ पाना, उनकी पूरी एनालिसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी फास्ट रिएक्शंस जैसी रिएक्शंस को या वेरी स्लो रिएक्शंस जैसी रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में डिटेल स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी रिएक्शंस बहुत ही कम होती हैं जो वेरी फास्ट हो या वेरी स्लो हो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो नेचर के अंदर होती हैं वो कैसी होती हैं? मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जिनको कंप्लीट होने में ना तो बहुत ही कम समय लगता है ना बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। वो मॉडरेट होता है, सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सालों लग जाए कि वेरी स्लो हो, और ऐसा भी नहीं है कि 1 सेकेंड भी ना लगे, उससे भी कम में हो जाए। तो इस तरह से वो दोनों के बीच का रास्ता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कौन सी होती है नेचर के अंदर? मॉडरेट रिएक्शंस। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? these reactions require neither very short nor very long time interval for their completion. ओके, ना तो बहुत ही कम समय लगेगा ना बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। दे completes in seconds, minutes, hours और डेज। बस, या तो कंप्लीट होने में सेकंड लगेगा या मिनट लगेगा या आवर लगेगा, डेज लगेंगे, महीनों नहीं लगेंगे, सालों नहीं लगेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि 1 सेकंड से भी कम पार्ट लगेगा। तो इसके अंदर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल्स आर देयर, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। और हम यूं कह सकते हैं कि हम 11th और 12th में जितनी भी रिएक्शंस की बात करेंगे वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कैसी होंगी? मॉडरेट रिएक्शंस, जिनको कंप्लीट होने में ना तो बहुत ही ज्यादा समय लगता है ना बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, और जो मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में कंप्लीट हो जाती हैं वो है मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये हमने सेकंड क्राइटेरिया देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप का जो मैकेनिज्म है या थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो उन्हीं रिएक्शंस की बात करेंगे जो अपने प्रीवियस 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। क्योंकि होता क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नेचर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, वो रिएक्शंस की बेसिस पे हम बताते हैं 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ऑन दिस बेसिस देयर आर 5 types of reactions। कौन कौन सी होती हैं आप सभी को मालूम है। पहला एडिशन रिएक्शन, और इसको अपन कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जिसको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, ये 5 टाइप की रिएक्शंस आपने पढ़ ली होंगी
पिछली क्लासेस में, उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इनका बेसिक थीम समझ लेते हैं कि इनके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो देखिए आगे ध्यान से। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ऐड होंगे, तब जाके प्रोडक्ट्स बनेगा। तो वी कैन से इन दिस रिएक्शन 2 or more reactants combines with each other to give a single product। ठीक है, जिससे कि एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। मोस्टली सिंगल ही मिलेगा, कई बार दो भी मिल सकते हैं, लेकिन वो कंबाइन करेंगे। ओके, दो से ज़्यादा अगर कंबाइन करेंगे तो दो भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपको सिंगल ही मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अपन। H2 इज अ गैस, Cl2 इज अ गैस, इन दोनों ने कंबाइन किया और यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन इज अ गैस, इट इज अ रिएक्टेंट, क्लोरीन इज अ गैस, इट इज अ रिएक्टेंट। इन दोनों के कंबाइन करने से एक सिंगल प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ओके, ये कौन सी रिएक्शंस में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ओके, अब ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। अब इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। अब इसके बाद सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन वर्ड में क्लियर है कि डीकम्पोज होगा, रिएक्टेंट के अंदर डीकम्पोजिशन होगा, उसका ब्रेकिंग होगा। डीकम्पोजिशन का हम दूसरा मीनिंग क्या समझ सकते हैं, ब्रेकिंग। ओके, ब्रेक डाउन होना, ओके, टूटना। तो यहाँ पे जब ब्रेकिंग होगी रिएक्टेंट की, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। सो यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही होगा, प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे। सो वी कैन से इन दिस reaction one reactant breaks down to give 2 or more products, breaks down to give 2 or more products। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद 2 या मोर प्रोडक्ट्स बना सकता है। ठीक है, वो कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। इसमें हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो एंडोथर्मिक होगा, तो उसके अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से, तो एनर्जी आ सकती है हीट के फॉर्म में, एनर्जी आ सकती है लाइट के फॉर्म में, और एनर्जी आ सकती है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो इन तीनों के बेसिस पे इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी फर्दर 3 टाइप्स हो गए, जहाँ पे एनर्जी हीट से भी आ सकती है, लाइट से भी आ सकती है और इलेक्ट्रिक करंट से भी आ सकती है। अगर एनर्जी हीट से आती है तो उस टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम होता है थर्मल डीकम्पोजिशन और पायरोलाइटिक रिएक्शन। अगर उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन और पायरोलाइटिक, अगर उसमें एनर्जी लाइट से आती है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक रिएक्शन। और अगर उसमें रिएक्शन में एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से आती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एक करके बात करें तीनों की, देखिए आगे ध्यान से। अब हम देखते हैं सबसे पहली बात, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। पहला हमने कहा पायरोलाइटिक
और थर्मल, एक सेकेंड, पायरोलाइटिक और थर्मल decomposition reaction. I think it is visible. पायरोलाइटिक और थर्मल. अब पायरो का मतलब होता है हीट और लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन. तो वी कैन से in this decomposition reaction energy is absorbed. Obviously energy तो absorb होगी ही होगी. Energy is absorbed in the form of heat. Energy is absorbed in the form of heat. जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो वहां से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. तो ये जो एग्जांपल हुआ, ये किसका एग्जांपल हुआ, पायरोलाइटिक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. ओके, अब इसके बाद एक एक सेकेंड बात करें, हम एक एक करके हम तीनों की बात करते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, दैट इज बी पार्ट, विच इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Okay, photo means something related with light, and photo actually it's not decomposition, it is only photolytic reaction. We can simply say photolytic reaction, क्योंकि यहाँ पे photolytic से ही clear हो गया, lytic means breakdown and reaction में reaction. So we can say in this decomposition reaction energy is absorbed in the form of light. एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है. जैसे आपने देखा सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं आप, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट पास करते हैं एच न्यू, और सिंपली आई कैन से लाइट, आपने दिया लाइट एनर्जी. Okay, then it will break into silver and Br2. Let's take 2. This is solid and this is silver solid and this is Br2. Okay, 2 Ag. So these type of reactions जहाँ पे AgBr जो है solid AgBr, वो लाइट एनर्जी लेके ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में. ब्रोमीन जनरली लिक्विड फेज में मिलता है आपको. तो ये जो रिएक्शंस हुई, इसमें क्या हुआ, एनर्जी किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई, लाइट के फॉर्म में, इसलिए उसका नाम हुआ फोटोलाइटिक रिएक्शन. ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट. अब इसके बाद हम देखते हैं सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस. नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन. तो वी कैन से इन दिस रिएक्शन द एनर्जी is absorbed. ये बात तो श्योर है कि एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी होगी. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, सो आई राइट इट हियर. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हम एनर्जी देंगे. यानी कि लेट्स सपोज हमने वाटर लिक्विड लिया और उसमें हमने इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सिंपली इलेक्ट्रोड्स लगा के, आपने डायग्राम देखा होगा, तो इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस टू. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिलेगी, एट कैथोड. कहाँ मिलेगी, एट कैथोड. जबकि ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी, एट एनोड. हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड. एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, जबकि कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन. ओके, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस. ठीक है, देखिए आगे. तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज देखे और उनके अंदर हमने अच्छे से समझा. सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा,
जिसमें हम रिएक्शंस को हीट ट्रांसफर की बेसिस पे समझते हैं। तो हीट ट्रांसफर की जब हम बात करते थे, हमने अभी आपको जो समझाया, हीट ट्रांसफर की बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शंस हो गई, एक्सो और एंडो, फिर हमने उसका डिटेल में बात की। ओके, फिर हमने देखा नेक्स्ट स्पीड की बेसिस पे, स्पीड ऑफ रिएक्शंस। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ओके, फिर हमने थर्ड क्राइटेरिया देखा। इस थर्ड क्राइटेरिया में हमने बात की नेचर की, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हमने दो बातें कही, एक तो हमने कहा एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हमने कहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जब हमने बात की है, उसके भी थ्री टाइप्स बताए, एक जब हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है तब, एक लाइट एनर्जी देनी पड़ रही है तब, और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ रही है तब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो इसके फर्दर टाइप्स हैं नेचर ऑफ रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 6 के अंदर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक फोर्थ टॉपिक और है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन और थर्ड क्लासिफिकेशन का फर्दर पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर 5 के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा मैंने आपको जो भी समझाया है वो समझ में आया होगा। ओके, इसके आगे हम वीडियो लेक्चर 6 में बात करते हैं।